आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी बताएंगे मौजम। टाइटल है इनसाइड वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा कर्ली टेल्स। इज इट फगवाड़ा और फगवाड़ा? मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब PH लिखा हुआ है ना। हाँ, फगवाड़ा भी हो सकता है, पगवाड़ा भी हो सकता है। तो प्लीज ये भी अब हम लोग को बता दीजिएगा। एनीवे देखते हैं इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, but this university in Punjab has surprised me with its size, infrastructure and architecture. Welcome to lovely professional university in Fagwada. This beautiful campus is situated in Jalandhar, Punjab. Lovely Professional University was established in 2005 and inaugurated its operations in 2006. There are 18 schools specializing in different fields with respective faculty and a boarding facility that can host 35,000 students. 35। वैसे तो मैं पंजाब कई बार आई हूँ and I would often come across the lovely professional university, but I would always just see it from the outside. I thought, why not get inside the campus and find out what this huge university has to offer. Each school is well equipped with facilities that give the students the best of both worlds, theoretical knowledge and on-ground experience. And that's not it. Lovely Professional University is recognized with UGC and now has tie-ups with some of the top-notch universities across the globe. I'm going to be exploring this campus with the Pro-Chancellor of this university, Rashmi Mittal. Hello ma'am. How are you? Very good. Welcome see to you. Curly Tales. Thank you. And I'm quite blown away by your university. Oh, it really? looks gorgeous, I have to say. Thank you so much. I mean, Thank this you. place is making me feel so nostalgic, even though my Piche bhi college sare was like सीखे हैं ना? 1/10 the size of this university. Even mine. First of all, I must say, I still remember my college days when we used to have only one canteen and sitting and having samosas and only bread pakoras there. Right. And now if you see campuses like this, you know, you're amazed to see the kind of lifestyle that these children have these days. Is amazing. Absolutely. So what are the perks of being a student at LPU? Oh. So I think it's very different from a traditional college where, you know, I still remember a teacher used to come and hand over, you know, something to us and say, okay, this is the curriculum, this is what we are going to be taught in those 3 or 4 years. Yeah. But now it's so different and dynamic. Every day it's something which is designed for the students. As you enter in and how you leave, every semester is planned beautifully for you. So whether you are an Indian student or international student, since we have students from all 28 states and 50 countries as well. Okay. So no barrier. So we have around 150 plus programs. Okay. So these many students and 35,000 students we have. And you have a capacity to hold 35,000 Yeah, students we have in the around university. 24,000 students staying in the campus, the hostel. Okay. And then rest of the students, they apply from various nearby places. And we have all kind of hostels, like students want to stay as a 2-seater, single-seater with kitchen, with ACs, and all those options are there for the students. And it is amazing. The agriculture farms where the university teaching happens. Okay. So they actually work on the ground. ये चीज़ The बहुत agriculture students. So when you see all Practically these चीज़ें buildings, बताई we जा have रही around 58 buildings. Yeah. This is the administration, this is the admission building. Right. So all these buildings are schools, you know. So, and if you look this side, so these are all flags of different nationalities that we have students from, and the tie-ups that we have with these countries. You know, in the beginning, initial times only, they would have a diagnostic test which would decide what career you want to pursue. So it's a 1-year internship that you get during your, working, and then you're working in the campus and making your pocket money. So those kind of opportunities are there. And if you are an entrepreneur, if you want to start your own business in the campus, then university would give them some kind of seed money so that you can start your business in the campus. You would see a lot of students of mine here working in the evening, and there's a golf cart also which is being run by the students, and
So those kind of opportunities, and their kiosks, businesses which are run by the students. Right. Not just studies. There are other activities also which helps to build their career. Absolutely, and basically it's like a 360-degree development that is happening for you in the campus. Yes. So we have this mall also here, Wow. just in front of you, and where most of the shops are run by the students. Really? So while they are studying, they can work there and make Nice. their money, as I said. And then adjacent to that, we have a uni hotel, which is also run by the students of hotel management. There's a school which is hotel management school, Zabardast. and their students help. And when the parents come and visit their children, so they can stay in that hotel, and children take care of them. Wow. This is also one of the entrepreneurship project of the student. Would love to take a ride on this one. A university with a buggy, it can't get cooler than this. So here are the playgrounds. These are the generic playgrounds that we have. Passport campus अगर इतना अच्छा हो तो classroom में कौन बैठेगा? The classrooms are also very interesting. Engineering Victor. So ma'am, programs तो बहुत अच्छे हैं, and I'm sure the students come here and enjoy their education, and there are lots of opportunities. But one of the biggest questions जो हमेशा हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और मेरी सैलरी क्या हो. Are you addressing that Yes, concern? that's the most important one. It's not only job. So we help students make their careers. So whatever career he chooses, it's not only job. It could be entrepreneurship. He wants to be a businessman. Maybe he wants to go into some government job, or maybe he wants to study abroad for further placements, or maybe he wants to get into higher studies. Right. So all those are the career options that he has. He chooses one. So we have a very beautiful system where he decides which way he wants to go, and then his training begins from there. By the end of the semester, by the end of the program, or maybe these days it is getting earlier, only after 2 years, in a 4-year program, after 2 years he started getting placements, like he goes for 6 months internships or 1-year internships also, and finally he gets, crack those packages. So like 62 lakhs ka package, 3 crores ka package if you are going for overseas placements. Wow, and is So- that their first job? With Yeah, the 62 first lakh? job, the first job. My God. So I think those are the kind of, so 1,000 companies would visit the campus, Right. and around 10 of my students, they are into their packages like above Right. 40 lakhs. And if you see any first 20, 500 Fortune companies, you see, Yeah. first 20 of them, if you see, Right. my students would be there. So are you I think, saying that all these companies are affiliated with the university? Yeah, yes. And by the end of the course, they would They would visit? come here Okay. and place our students. And you give them the opportunity that while you are studying, Yeah. you can go enhance yourself, get practical knowledge, get learnings on the job. That's a part of the curriculum. That's a part of That's the a part of the curriculum. You have to do certain assignments after your classes, and that they are practical assignments. You'd have to go to the industry and work. Right. You have to do certain MOOCs in place of the courses, or you have to do certain certifications. That's how your CV becomes richer and richer, Right. which then gets attracted by the companies. Yeah, and that's what the So- employers are seeing, how Yeah, rich your of course, CV is, of what course, experience of you have. course, of And you course. can get a salary as high as 62 lakhs per annum. Yeah. And going all the way up to 3 crores also if you find a job Yeah, abroad. yeah, Wow, yeah. this sounds very, Yeah. very interesting, ma'am. I wish I knew about it. I'm earning peanuts. Application. Tell me, कोई ऐसे personalities हैं who've actually passed out of LPU and have earned a name for our country? I think very recent is 12 of our students who are a part of Olympics. And Neeraj Chopra, who won the gold medal for India, is also an LPU student. And won in Paralympics, and 12 of our students in hockey team That's a represented great India. alumni, I that's- have we are to proud say. of them. We are really, really proud of them. So ma'am, there's no doubt that the campus is beautiful and it's very aspirational for all the students across the world and of course India जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे. But what about those students जो यहाँ की fees afford ना कर पाए? उनके लिए ये option है या नहीं? Yeah.
of course, because we have certain students who are on full scholarship, like 100% scholarship. They would have no tuition fee for them, hostel free, food is there's no food fee. So I think there are a lot of students who are staying in full scholarship, 90%, 80% scholarship. The students who've done well for themselves in sports, cultural and other activities, academics, so they get these kind of scholarships. स्कॉलरशिप एज इन मेरी, अभी मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ यहाँ से, मेरी MBA की पूरी एकेडमिक्स फीस फुल स्कॉलरशिप पे है, हॉस्टल भी फुल स्कॉलरशिप पे है एंड फूड भी। इसने तो मतलब नेशनल जीत के फिर स्कॉलरशिप भी मतलब लिया और अब ये फुल मतलब उसमें MBA टोटल स्कॉलरशिप में कर रहा है। मैंने मतलब जब एडमिशन लिया था मुझे तभी स्कॉलरशिप मिला था। I just completed my internship yesterday and it was pretty interesting and I enjoyed it. I made so many friends out of the country, even from people from Tanzania, Africa, South, are all of my friends. मेरा तो 3rd ईयर है यहाँ पे म्यूजिक में, क्लासिकल में। अच्छा। हाँ जी, और मेरा 2nd ईयर है, मैं थिएटर से। तो आप गाते हैं? आप गाएंगे हमारे लिए? जी मैं। जो पर्वत ओले पर्वत किन्ने लुके हुए ने, यूं वक्त दे ओले वक्त भी किन्ने छुपे हुए ने, कहानी ओही पुरानी वे सज्जना नाम ने बदले, तू जाके पुछ ले चाहे ए सागर नदियां तो, मैं डिया मैया टोला तेरा एतबार। I had such a great time exploring this campus और सच बताऊँ तो मन कर रहा है मैं भी दोबारा ज्वाइन कर लूँ. But I think I have to explore a little more of Punjab. Next I am heading to Chandigarh. I hope you enjoyed exploring lovely professional university with me. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. भाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैंने पहले इसके बारे में सुन रखा था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं था मालूम कि भाई इतना बड़ा इसका कैंपस है. बिल्कुल, मतलब पूरे कैंपस में 57 बिल्डिंग्स हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि जितना भी नॉलेज शेयर किया जा रहा है, जैसे कि एक हमारे साथ वाकई में होता था कि आपको बता दिया जाता था कि ये करिकुलम है और इसको पढ़ना है, लेकिन ये कि बाद में जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना नॉलेज शेयर किया जाता है वो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको कुछ नहीं आता, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है, आपकी बेस जरूर बनती है, बट जब आप प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपीरियंस करते हो उन्हीं चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आपका जो समझने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होती है. यार मुझे जो है ना यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटीज़ की जब बात करता हूँ ना, तो एक चीज़ जो है यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जाता है और एक इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद वापस बुला लिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से स्टडी जो है कंटिन्यू की जाती है. मुझे जो है एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि आपको साथ साथ जो है चीज़ें सिखाई जा रही है, आपको एक्सपीरियंस जो है वो दिलवाया जा रहा है, और वो करिकुलम का पार्ट है. वो उसका करिकुलम का पार्ट है, यानी कि जब आप जो है यूनिवर्सिटी अपनी ख़त्म करेंगे आपके पास इनफ एक्सपीरियंस होगा कि जब हम कहीं पे, मैं यहाँ पर ये चीज़ देखता हूँ कि आप कहीं पे जॉब मांगने जाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है ना. तो एक फ्रेश ग्रेजुएट का ये भाई हाल होता है, वो कहते हैं भाई अभी अभी तो पढ़ के एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए. तो ये चीज़ अगर देखी जाए ना तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कवर हो यानी कर रही है यूनिवर्सिटी कि आपको जो है इनफ एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप जो है यूनिवर्सिटी खत्म होते साथ ही आपको एक अच्छा जॉब पैकेज जो है वो मिल रहा है. अच्छा, मेरी हंसी सीरियसली कंट्रोल नहीं हो रही है. हम जॉब मांगने जाते तो ऑफकोर्स जॉब मांगने हर चीज हम मांगने जाते हैं लेकिन यार मांगने वाला हिसाब है ना कि क्या नाम लेते, ये हकीकत है कि भाई बच्चे जो है वो जॉब लेने जाते हैं, हम लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट, इतना वो सर में बिठा दिया हुआ ना कि हर चीज मांगने जाते हैं. फिर एनीवे ये तो एक मजाक का हिस्सा था, बट मुझे जो मेन इशू नजर आता ना, मतलब अभी जैसे हम, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं और
2 साल के टाइम में जो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें बदल गई होंगी, लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि करिकुलम में आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप इंटर्नशिप के लिए भी जाते हो, आपको खुद कैसे अर्न करना है वो सारी कंसल्टेंसी भी होती है। फिर जैसे बीच में शॉपिंग मॉल, भाई ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का मॉल बनाया गया है, होटल बनाया गया है, जहां पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि मतलब आप किस लेवल पर अभी जहां पर आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो, और अक्सर हम लोग ये कहते होते हैं कि हम लोग कमाएं या हम लोग पढ़ें, तो उसी लेवल पर आपको इतना ग्रूम किया जा रहा है कि आप पढ़ें भी और साथ साथ उसको प्रैक्टिकली अर्न भी करें। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि भाई आप कहाँ कहाँ पर चूक रहे हैं, और आपके पास गाइड के लिए आपको करने के लिए अभी टीचर्स भी हैं। सो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और दूसरा जो मैं प्रॉब्लम की बात करी थी वो ये कि जैसे इसमें मैंने पहले भी सुना था कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ मतलब एफिलिएटेड होती हैं, ये तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन वो आती हैं बाय द एंड ऑफ द सेशन, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको वो हायर करती हैं। अब यहाँ पर मैं ये बात देखती हूँ, एक तो आपको कोई इस तरीके से आपकी कंसल्टेंसी के लिए कोई खास डिपार्टमेंट नहीं होता जो आपको गाइड करे कि भाई हाँ आपने कौन सा करियर चूज करना, आगे क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, या अगर आपने जैसे इंटर्नशिप भी करनी है उसमें भी कोई हेल्प नहीं करता। अगर आप ये कहें कि आपको कुछ ऐसी होती है ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि भाई हमारे बच्चे आएंगे यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए, ऐसा भी कोई सहूलत नहीं दी जाती। इवन के जो आपको टास्क दिए जाते हैं ड्यूरिंग योर सेशन, उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि हमारा एक इवेंट मैनेजमेंट का एक हमारा सब्जेक्ट था, और उसमें हम लोगों को मतलब मुझे और मेरी एक और फ्रेंड है, हम लोगों को क्या मतलब एक टास्क दिया गया था कि हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप लेकर आनी है उस इवेंट के लिए, और ये इतना आसान काम नहीं होता। खैर उस टाइम पर तो हम लोग थोड़े बेवकूफ थे, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में कि हम लोगों ने भी अच्छी खबरी ली, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास गए और हम लोगों ने वहां पे प्रपोजल दिया। तो ऐसे तो कोई भी आपको एक हम कहेंगे कि आपको स्पॉन्सर नहीं करता। हाँ, मतलब कि आप उठकर चले जाओ और आप आई थिंक एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, और साथ में यूनिवर्सिटी की साइड से थोड़ी सी आपको मुझे लगता है कि एक सपोर्ट होनी चाहिए जहां पर हाँ कोई आपको उस चीज को समझ भी पाए और आप कन्विंस कर पाओ किसी को। खैर उस टाइम पर आपकी कन्विंस करने की थोड़ी इतनी ज्यादा क्या कहेंगे कि पावर इतनी अच्छी नहीं रहती चीजों, क्योंकि आप भी उस प्रोसेस का एक हिस्सा होते हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैं देखती हूँ कि लैक करती हैं यहाँ पर। हालांकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो काफी बड़ी थी, आई मीन हमारे लिहाज से तो बहुत बड़ी थी। जो नया कैंपस था वो 200 कनाल पर था, तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि अभी जैसे ये यूनिवर्सिटी मैंने देखी तो बिल्कुल एक डिफरेंट साइड है भाई, मतलब मॉडर्न एजुकेशन की। जैसे हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग के लिहाज से, देखो बीच में काफी सारे आपको जो मतलब प्लेन्स नजर आ रहे हैं, फिर मतलब ट्रेनिंग के लिहाज से स्पोर्ट्स में हर आप देखो कि फील्ड में आपको आपके स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व नजर आते हैं। यार मैं फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया था ना, काफी लंबे से बाद जो उनका न्यू कैंपस बना, मुझे वो बहुत बड़ा कैंपस लगा। लेकिन आज वाले कैंपस की बात करें तो इसे देख के जो है भाई एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो सिनेरियो, क्योंकि भाई जितना बड़ा कैंपस है ना वाकई बगैर कार्ड के जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है, दिक्कत आती है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हैं, बेशक वो होटल की हैं, बेशक वो मॉल्स की हैं, वो जो है स्टूडेंट्स को ही दी जा रही हैं बाहर से। यानी कि ये नहीं कि एक बिजनेस ही बनाया हुआ है, आप जो है बच्चों को जो है यानी कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर जॉब करनी है जॉब करें, अगर जो है बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उस तरह की उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाए। हो सकता है कि इसी मॉल से उठ के कल किसी की एक चेन बन जाए, ठीक है। तो ये चीज ये इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये बहुत अच्छे हैं। देखो विद इन प्रेमिसेस आपको काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और जहां पर मौजूद होगा कि वाकई में कल को एक एक चेन बन जाए, आपका ब्रांड बन जाए। और इससे मुझे लगता है कि सिर्फ उस टाइम के बच्चों को नहीं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के बच्चे उनको नहीं फायदा था, मे भी बहुत सारे ऐसे लोगों को रोजगार मिल रहा हो कि जिनसे आप चीजें बनवा रहे हो, लोकल चीजें बनवा रहे हो, उनको भी एक रोजगार मिल रहा है। सो ऑनेस्टली बोलूं तो ओवरऑल मुझे ये सारी चीजें मतलब जो भी आज हमने वीडियो में देखी इस यूनिवर्सिटी की, मुझे सबसे ज्यादा खासियत ये लगी है कि इसमें बच्चों की ट्रेनिंग की जा रही है कि आपने कैसे अर्न करना है, उनको ग्रूम किया जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी को, सिर्फ उनको एक नॉलेज नहीं उनको दिया जा रहा,
प्रैक्टिकली चीजें भी उनको सिखाई जा रही हैं। और एक चीज और जो मुझे अच्छी लगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पे कर सकते, उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप का जो है वो एक है कि भाई 80%, 90% और 100% स्कॉलरशिप भी जो है, बाकी वो क्राइटेरिया मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन जो है ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई आपने जो है ना हर तरह के जो बच्चे हैं उन्हें रखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे लिटरली ऐसे होते हैं कि स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन नहीं वो अफोर्ड कर पाते जो है ना जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में मिलती है। बेस्ट पार्ट लगा है वो ये कि सब कुछ फ्री है, मतलब आपको खाना रिहाइश मिलेगा, तो ये चीज मुझे लगी। और भाई रिहाइश भी मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे बाहर से पता चला AC लगे हुए भाई कमाल के, वो भी विंडो। आपको एग्जैक्टली ये बात कह रही हूँ, वरना हॉस्टल लाइफ मुझे लगता है कि जो थोड़े से आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन समटाइम्स जो हम लोगों ने देखे हैं, मैंने वैसे में देखे हुए हैं, उसमें पता चलता है कि थोड़ी दिक्कत भी रहती है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने हॉस्टल्स देखे हैं कि हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं। मैंने वैसे जो है ना यहाँ पर जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा, वहाँ पे AC नहीं, पंखे या आप कूलर लगा सकते हैं, कम है कूलर लगा सकते हैं। इवन कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स की भी बात करूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज नहीं देखी। हाँ, अगर आपने अपना हट कर कहीं पर जो है प्राइवेट हॉस्टल लिया हुआ है, उसमें आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। और भाई आज मुझे पता चला कि जब लास्ट टाइम पर मैंने साड़ी पहनी थी तो उस साड़ी को क्यों बोला जा रहा था कि भाई आप टीचर लग रही हैं आज, क्योंकि हाँ यहाँ वैसे मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि रूटीन लाइफ में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल होती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया ये यूनिवर्सिटी देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और यूनिवर्सिटी से कौन कौन है बिल्कुल ये जरूर बताइएगा, और बाकी ऐसी यूनिवर्सिटी देखकर बंदे का ना दिल करता है कि दोबारा एडमिशन ले ले। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लेने का तो कभी दिल नहीं किया, लेकिन हाँ मैं जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी और जिस तरीके से उनकी एक्टिविटीज हुआ करती थी ना, तो मेरा दिल तब बड़ा करता था कि काश मैं छोटी हो जाऊं और मैं इन बच्चों की तरह जो है वो एजुकेशन ले सकूं। तो वो मुझे बड़ा मतलब एक कहेंगे कि वो चीज़ अट्रैक्ट करती थी, बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रहती थी। सो गाइस, ये थी हमारी आज वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ ही मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।